Hello everyone, I welcome you all to the Radesh Sharma classes. Today we will study a lesson in English for students of class 9th. The name of the chapter is Ishwaran the Storyteller. It is from the Moments book and it is written by R.K. Lakshman. Let us do the introduction. R.K. Lakshman was a very famous storyteller and a cartoonist. He belonged to Karnataka. He drew sketches for one of the most famous serial in India, Malgudi Days. He also drew cartoon for some of the leading newspaper of India. Now, let us come to the title of this chapter, Ishwaran, the Storyteller. So this story is about Ishwaran, a man named Ishwaran, and he is called the storyteller. Now, why does the author call him a storyteller? Actually, storytelling is an art. How well you tell the story, you put in special effects, you do voice modulation, you use your body language in order to make story realistic so that the listener gets enthralled and captivated in your story. That is the art of the storytelling, and writer over here wants to highlight this quality of Ishwaran. And Ishwaran was very good at telling stories that they appear to be real. Now, with this, let us begin the story. I will read the chapter and explain it to you. The story was narrated to Ganesh by a young man Mahindra by name. Now here, the story of Ishwaran is being told to a man named Ganesh, who is telling the story here. ये स्टोरी कौन सुना रहा है यहाँ? ये स्टोरी महेंद्र सुना रहा है. He was a junior supervisor in a firm. Firm means here company. तो यहाँ पर जो महेंद्र है वो एक कंपनी में जूनियर सुपरवाइजर का काम करते हैं, which offered on hire supervisor at various types of construction site. और यहाँ पर वो ऑफर करते हैं अलग अलग कंपनी को अलग अलग तरीके के सुपरवाइजर्स भी, या जो लेबर्स होते हैं वो सुपरवाइजर दोनों प्रोवाइड कराते हैं कंपनी को, और वो खुद भी कई साइट्स पर जाकर सुपरवाइजर करते हैं. सो दिस स्टोरी ऑफ ईश्वरन इज बीन नरेटेड टू गणेश. गणेश को महेंद्र जो है ये स्टोरी सुना रहे हैं. नाउ अलग अलग जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है को जहां पर वो जाते हैं, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन, यानी कि वो ब्रिजेस में जाते हैं, फैक्ट्रीज में जाते हैं, डैम्स के अलग अलग साइट्स पर जाकर सुपरवाइजर करते हैं. नाउ हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपरवाइजर? सुपरवाइजर इज अ पर्सन हु चेक्स द वर्क ऑफ ऑल द अदर पीपल. जो बाकी सभी लोगों का जो है काम सुपरवाइज करते हैं, उनको चेक करते हैं. Mahindra's job was to keep an eye on the activities at the work site. He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office, from a coal mining area to a railway bridge construction site. From there, after a few months, to a chemical plant which was coming up somewhere. Now here, जो महिंद्रा है उसका क्या काम है, उसका क्या जॉब है, यहाँ पर वो अलग अलग साइट पर जाकर ध्यान रखता है या जो है उसके ऊपर जो है आई रखता है. नाउ ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. और यहाँ पर वो क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान हमेशा इधर उधर जो है वो ट्रांसफर होता रहता है या एक साइड से दूसरे साइड पर आना जाना करता रहता है.
क्यों करता है वो? क्योंकि जो हेड ऑफिस है, जो उसकी जो फर्म के हेड ऑफिस है, वहां से उसको ऑर्डर मिलता है, तो जिस साइट का उसको ऑर्डर मिलता है वो साइट पे जाकर काम करता है। जैसे कि उसको कभी कोल माइन का एरिया का मिल जाता है, आप जैसे पिक्चर पे देख सकते हैं, कभी उसको रेलवे ब्रिज का ऑर्डर मिलता है, उस कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है, कभी कोल माइन की कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है, और अब कुछ महीने यहां रहता है, अब कुछ महीने जो कमिंग अप केमिकल प्लांट में का भी जो है उसको ऑर्डर मिल चुका है, तो कुछ दिनों के लिए अब वो केमिकल प्लांट में भी जाएगा, उस साइट पर भी जो है ध्यान रखेगा। He was a bachelor. Bachelor means here unmarried. His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions. यहां पर बता रहे हैं कि किसी भी तरीके की odd conditions हो, यानी कि बहुत ही मुश्किल जो conditions होती है वहां पर भी वो अपने आप को adjust कर लेता था। Why? क्योंकि वो bachelor था, unmarried था, तो उसकी जो जरूरतें थी वो बहुत ज्यादा सिंपल थी और थोड़ी थी, तो इसलिए वो अपनी किसी भी ऑड कंडीशन में अपने आप को रख पाता था। Now whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas stand in the middle of a stone quarry. Quarry means here mine, जो कोयले की जो खान होती है जहां से कोयला निकाला जाता है, तो वो किसी भी ill equipped means here a circuit house which does not have all the required facilities to live life. तो ऐसी जगह जहां पर कंडीशंस काफी ऑड होती है, बट स्टिल ही एडजस्ट देयर, फिर भी वो वहां पर वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता था क्योंकि वो बैचलर था, he didn't have family, he didn't have children, तो इसलिए वो अपने आप को पे जो है अडेप्ट कर लेता था। और यहां पर कैनवस टेंट इन द मिडल ऑफ ए स्टोन क्वेरी, यानी कि वो एक टेम्पररी टेंट पे भी उसको रहना पड़ सकता था और वो रहता था। बट वन एसेट ही हैड was his cook ईश्वरन। नाउ ही हैड वन एसेट, एक एडवांटेज थी उसकी, वो थी उसका कुक ईश्वरन। द मेन कैरेक्टर ऑफ ए स्टोरी was a Mahindra's cook. The cook was quite attached to Mahindra and followed him uncomplainingly wherever he was posted. तो यहां पर जो कुक है वो काफी अटैच है महिंद्रा से, और यहां पर महिंद्रा की कहीं पे भी पोस्टिंग होती है वो उसके साथ रहता है बिना किसी शिकायत के। He cooked for Mahindra, washed his clothes and chatted away with his master at night. वो उसके लिए खाना पकाता है, उसके कपड़े धोता है और अपने मास्टर यानी कि जो महिंद्रा अपने मालिक से बातें भी करता है। Chatted to talk. He could weave out endless stories and anecdotes on varied subject. What is the meaning of anecdote? Means here a short, amusing or interesting story about a real incident or person. यानी कि एक ऐसी छोटी सी इंटरेस्टिंग यानी कि रुचि भरी कहानी और कोई एक रियल इंसिडेंट के ऊपर, उसको हम एनेक्डोट बोलते हैं। तो वो उसके अंदर एक आर्ट थी स्टोरीज को क्रिएट करने की। एंडलेस स्टोरी जो है वो कोई भी कहानी बना सकता था, और जो है एंटरटेनमेंट के लिए वो अपने मालिक को यानी कि महिंद्रा को कहानियां सुनाता था, क्रिएट कर किसी भी सब्जेक्ट पर। Ishwaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients, seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around. Desolate means here uninhabited and empty. यहां पर ईश्वरन की अमेजिंग कैपेसिटी के बारे में बताया गया है क्योंकि यहां पर महिंद्रा की ऐसी ऐसी जगहों पर पोस्टिंग होती थी जहां दूर दूर तक कोई भी शॉप्स नहीं होती थी और वहां पर दूर दूर तक कोई लोग नजर नहीं आते थे, लेकिन ऐसी जगह पर भी वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां और सब्जियों के में डलने वाले इंग्रेडिएंट्स वो जो है इकट्ठा करके ले आता था और खाना बना देता था। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the Jamshed
shelter at the new workplace. Now, what is the meaning of here? Zinc sheet shelter. It's a temporary house. And what is the meaning of conjure up? The gather or create with magic. जैसे कि यहाँ पर कौन बता रहा है? यहाँ पर महिंद्रा बता रहे हैं स्टोरी गणेश को. क्या बता रहे हैं गणेश को? कि कॉन्जर अप, यानी कि वो इस तरीके से 1 घंटे के अंदर, जब मेरी कहीं पे पोस्टिंग आती थी तो सिर्फ वो 1 घंटे में सारी चीजें इकट्ठी कर लेते थे. कौन कर लेते थे यहाँ पर? ईश्वरन. और कॉन्जर अप मीन्स एक ऐसे जादू की छड़ी घुमाते थे, ऐसा लगता था जैसे कोई मैजिक किया है उन्होंने. और एक डिलीशियस डिशेस, यानी कि खाना जो है वो इतना डिलीशियस बनाते थे और उसमें फ्रेश वेजिटेबल्स भी होती थी और वो फटाफट ये काम कर देते थे विद इन एन आवर. Mahindra would be up early in the morning and leave for work after breakfast, carrying some prepared food with him. Meanwhile, Ishwaran would tidy up the shed, wash the clothes and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. Now, what is the meaning of muttering here? Speaking in a low voice, यानी कि बहुत ज्यादा धीरे आवाज में बोलना. यानी कि जो मंत्र जाप करते हैं, कई बार आपने देखा होगा कोई जो नहाते हुए बाथरूम में कुछ मंत्र वगैरह बोलते हैं तो उसको हम मटरिंग बोलते हैं. नाउ महिंद्रा वुड बी, यानी कि यहां पर बता रहे हैं महिंद्रा गणेश को ये स्टोरी बता रहा है कि मैं तो फटाफट जल्दी सुबह उठकर ब्रेकफास्ट कर कर और अपना खाना साथ में ले जाता था और उसके बाद जो ईश्वरन है वो शेड, यानी कि जो हमारा टेम्परेरी हाउस है उसको ठीक से देख रेख करता था, यानी कि उसकी सफाई करता था, क्लीन करता था. उसके बाद मेरे कपड़े भी धोता था और उसके बाद वो नहाता था, यानी कि बहुत सारी बाल्टियों से यहाँ पर वो नहाता था. कैसे करते हुए? प्रेयर करते हुए, मंत्र जाप करते हुए. It would be lunch time by then. After eating, he would read for a while before dozing off. Here, यानी कि यहाँ नहाने के बाद वो लंच करता था ईश्वरन, और लंच करने के बाद जो है कुछ बुक्स पढ़ता था और उसके बाद dozing off means here falling asleep. उसके बाद वो सो जाता था. The book was usually some popular Tamil thriller running to hundreds of pages. यानी कि वो हमेशा तमिल की जो है बुक्स, थ्रिलर बुक्स जो है वो पढ़ता था. लगभग काफी मोटी 100 पेजेस की वो बुक्स होती थी. इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नरेटिव फ्लोरिश वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्राल. यस, नरेटिव फ्लोरिश मीन्स हियर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस, यानी कि वो जिस चीज के बारे में बताया गया है डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा डिटेल में जो है वो बताना. एंड इंथ्राल मीन्स हियर द स्टेट ऑफ बीइंग इन समवन्स पावर, यानी कि अट्रैक्ट हो जाना और कैप्टिवेट हो जाना. तो यहां पर वो जो है तमिल की बुक्स पढ़ता था और कहानियां जो है इमिटेट डिस्क्रिप्शंस वाली जो है कहानियां वो पढ़ता था और उसमें वो क्या हो जाता था, उस कहानी को पढ़ते ही उसमें मगन हो जाता था, अट्रैक्ट हो जाता था, कैप्टिवेट हो जाता था, वो सब चीज भूल जाता था. His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. For example, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say with eyebrows suitably arched. Now here arched means here curved up. Now here यहाँ पर जो descriptions जो दे रहा है, कौन दे रहा है यहाँ पर? ईश्वरन. तो वो जैसे जो बुक्स पढ़ता है, तमिल बुक्स पढ़ता है, तमिल ऑथर्स की जो है वो बुक्स पढ़ता है, तो उसके अंदर जिस तरीके की डिस्क्रिप्शंस होती है वो जब वो कोई स्टोरी सुनाता है तो उसके अंदर वो इन्फ्लुएंस डिस्क्रिप्शंस का आता है.
तो जब वो कोई छोटे से छोटा इंसिडेंट भी अगर वो कुछ बताता है या सुनाता है तो उसके अंदर एक स्टाइल होता है, सस्पेंस क्रिएट किया जाता है, सरप्राइज एंडिंग होती है उसके अंदर। जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे कि सिर्फ एक कोई एग्जाम्पल में बताया ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, कि एक हाईवे है उसके ऊपर एक पेड़ जो है वो टूट गया है या निकल गया है। तो सिर्फ एक यही लाइन नहीं बोलना है, अब वो इसको किस तरीके से इतनी सी इंसिडेंट को कैसे बोलता है, तो वो अपनी आईब्रोज को कर्व्ड अप मतलब ऊपर की तरफ, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो कर्व की हुई है, ऊपर की तरफ की हुई है, और आवाज को मॉड्यूलेट कर कर और अपने हाथों को हैंड्स को बाहर निकाल कर जैसे कि कोई ड्रामा है, और वो बोलता है कैसे, द रोड वॉज डेजर्टेड एंड आई वॉज ऑल अलोन। इस तरीके से स्टाइल में वो उसको पढ़ता है, बताता है। डेजर्टेड मीन्स जो है एम्प्टी, अकेला, यानी कि वो बता रहा है कि सुनसान जगह है और मैं वहां पर अकेला था।